ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 27 ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਵੀਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਲਾਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਡੇ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, SSC, CGL, CHSL, PCS ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨਿਊਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਔਰ ਸਕੀਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਵਾਰਡਸ, ਡੇਜ਼, ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੈਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ KP ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ IUCN, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗਲੈਂਡ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਮਾਲਯਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਨੂੰ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। UK ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੁਆਰਾ COVID-19 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ UK ਦੁਆਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਲਾਲਿਓ ਵੋਲਕੈਨੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਰਪਟਡ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ। ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਾਰਥ ਸੈਂਟੀਨਲ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਨਲੀਜ਼ ਟਰਾਈਬ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਗੇਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਗੇਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੇਨ ਈਟਿੰਗ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਇਗੀਨਾ ਫੋਲਵੇਰੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਬ੍ਰੇਨ ਈਟਿੰਗ ਅਮੀਬਾ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪ ਸਾਰਥੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸਾਰਥਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਨੇ IT ਫਰਮ ਕੈਪ ਜੈਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਏਬਲਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। MSME ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਪੇਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਓ ਡੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ KVIC ਦੁਆਰਾ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। UP ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੁਆਰਾ ਜੇਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਾਰਸ ਕਰੇਨ, ਜੋ ਕਿ UP ਦਾ ਸਟੇਟ ਬਰਡ ਵੀ ਹੈ।
पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह द्वारा पैडी स्ट्रॉ ब्रिक्विटिंग कुलबुरचन विलेज ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੁਲਬੁਰਚਨ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰੋ ਬ੍ਰਿਕਵਿਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ। ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ ਈ-ਵਿਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। केरला गवर्नमेंट द्वारा UN वूमेन ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ ਜੈਂਡਰ ਹਬ। ਟਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੂ ਟਰਾਈਬਸ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੋਰੂਮ, 2 ਟਰਾਈਬਸ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੂਸਰਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। USA ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਸਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ 2027 ਤੱਕ। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा ही एक मैगा लैदर पार्क अनाउंस किया गया रमायपुर कानपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 8th ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲ ਬੇਸਿਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੂਜ਼ਿਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਗਰ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਸੈਨ ਸਾਗਰ ਲੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, हैदराबाद तेलंगाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 200 ਫਿਟ ਗਲਾਸ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਜਗੀਰ ਨਾਲੰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਗੋਟ ਇਟਸ ਫਰਸਟ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਪੂਨੇ ਐਜ਼ ਸ਼ਿਵ ਛਤਰਪਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ। शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कंपलैक्स ਨੂੰ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ अपग्रेड ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟਸ यूनिवर्सिटी ਬਣੀ ਹੈ। तेलंगाना ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਕੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਚੋਲੀ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰਸਟ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हैडकुआटर कोची केरला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਕਵਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੀਬੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ओप्पो एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ हैदराबाद तेलंगाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5G ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲੈਬ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ओप्पो ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੈਬ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। इसरो विल सेटअप रीजनल अकैडमिक सेंटर, एक रीजनल अकैडमिक सेंटर लगाएगा इसरो IIT वाराणसी BHU ਦੇ ਵਿੱਚ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ। नीति आयोग द्वारा डिजीबॉक्स लॉन्च किया गया। डिजीबॉक्स इंपोर्टेंट रहेगा, जिस दे विच तकरीबन 2 GB तक की फाइल स्टोरेज जी फ्री दे भी दी जाएगी और बाकी जी फाइल स्टोरेज है उसके उत्ते चार्जिज होंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट अल डाफरा सोलर प्लांट है जोड़ा 2 गीगावाट का है, UAE दे विच सैटअप किया जा रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। कर्नाटका द्वारा फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनीफाइड बेनीफिशरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया गया कर्नाटका द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया की पहली फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलैस ट्रेन लॉन्च किया जा रहा है, फ्लैगड ऑफ किया जा रहा है, बेसिकली कल किया जाएगा। मैगेंटा लाइन ऑफ दिल्ली मैट्रो दिल्ली दे विच इसनूं लगाया जाएगा। कितने किलोमीटर? 37 किलोमीटर तक ये चलाई जाएगी। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने नितिन गडकरी द्वारा 18 हाईवे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया राजस्थान दे विच, जिहड़ी कि तकरीबन 1127 किलोमीटर रोड नूं कनैक्ट करेगी अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट। डिफेंस सैकटरी अजय कुमार द्वारा DGNCC डिजिटल फोरम न्यू दिल्ली दे विच लॉन्च किया गया। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा
स्टेडियम अनाउंस किया गया, इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी दे विच। ये कित्थे है? रौयकेला डिस्ट्रिक्ट दे विच, रौयकेला डिस्ट्रिक्ट दे विच। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बॉबडे द्वारा ई सर्विसिज सेंटर ओपन किया गया त्रिपुरा हाईकोर्ट दे विच। त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अखिल खुरेशी। नैक्सट है मीटिंग्स एंड ईवेंट्स की अगर आप गल करते हैं तो सब तो पहले 51st एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल ऑफ इंडिया का गोवा दे विच। इसकी डेट्स फाइनली अनाउंस कर दी गई ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया गया PM ऑफ वियतनाम के नाल, ठीक है जी। और किसी भी एशियन कंट्री के नाल इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल समिट सीगा, ठीक है जी। इस तो इलावा वैबीनार की गल करते हैं तो वैबीनार इंडिया और मालदीव्स के नाल ऑर्गेनाइज किया गया फीकी दे लिए, फीकी के नाल और डिफेंस मिनिस्ट्री के नाल मिल के। इसी दे नाल इंडोनेशिया के नाल यह मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। इंडोनेशिया के नाल NCB की मीटिंग, चौथी NCB की मीटिंग यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मीटिंग इंडिया के नारकोटिक्स हैड राकेश अस्थाना द्वारा इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया और 5वीं मीटिंग अनाउंस की गई कि इंडिया दे विच ही होस्ट की जाएगी। बांग्लादेश के नाल डायरैक्टर जनरल BSF मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, याद रखांगे गुवाहाटी तो असम दे विच। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस्ड इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस। इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई जिसका फर्स्ट एडिशन बोध गया 2015 दे विच किया गया सी। जम्मू एंड कश्मीर वेलकम्स चिलाई कलन फैसटिवल। चिलाई कलन फैसटिवल है जिहड़ा जम्मू कश्मीर दे विच ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसी दे नाल इसनूं फेरान फैसटिवल भी कहा जाता है और वर्ल्ड फेरान डे 21 दिसंबर नूं ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल गीता फैसटिवल हर साल कुरुक्षेत्र हरियाणा दे विच ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस साल भी ऑर्गेनाइज किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फैसटिवल दे विच इन्हां द्वारा एड्रैस किया गया। तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा जलीकट्टू फैसटिवल शुरू किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया कुछ रेस्ट्रिक्शंस दे नाल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एक स्पैशल पोस्टल स्टैंप भी रिलीज़ की गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे सेंटिनल सैलीब्रेशन दे विच। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने ने जिन्होंने इस सैरेमनी नूं अटेंड किया है आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर INB मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर इन्हां द्वारा ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट अनाउंस किया गया। ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट अनाउंस किया गया 2021 दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट इंडिया की यूरोपियन यूनियन के नाल 16वीं मीटिंग 2021 दे विच पोर्तुगल दे विच ऑर्गेनाइज की जाएगी। यूरोपियन यूनियन के फैक्ट्स इत्थे लिखे हुए ने, स्टडी कर सकते हैं। नैक्सट है फ्रांस द्वारा रीसेंटली इंडियन ओशन रिम एसोसीएशन का मैंबर बनाया गया। फ्रांस नूं रीसेंटली आयोरा का मैंबर बनाया गया। आयोरा 1997 दे विच बनाया गया सी, ठीक है जी। इसी दे नाल आयोरा की 20th मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? UAE के चेयरमैनशिप के अंडर। इंडिया वालों अगर आप गल करते हैं तो वी मुरलीधरन जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, इन्हां द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। श्रीलंका इस दे विच वाइस चेयरमैन के तौर पर रोल अदा कर रहा है और इसका हैडकुआटर है जिहड़ा इबीन मॉरीशियस दे विच। नैक्सट है रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स दे वल चलते हैं तो सब तो पहले इंडिया का रैंक ह्यूमन फ्रीडम इंडैक्स दे विच 111 रहा 162 कंट्रीज़ दे विचों। लास्ट ईयर अगर इंडिया की गल करते हैं तो 94 नंबर पर रहा सी रैंक, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होया है। इसनूं टॉप किया गया न्यूजीलैंड द्वारा, सैकेंड प्लेस ते स्विट्जरलैंड और थर्ड प्लेस ते हांगकांग रहे। इकरा द्वारा इंडिया की GDP फोरकास्ट की गई है -7.8%। नैक्सट है ये न्यूज़ इंपोर्टेंट रहेगी कि यूनियन कैबिनेट ने 100% FDI की अप्रूवल दी है डायरैक्ट टू होम फैसिलिटी दे विच, डायरैक्ट टू होम फैसिलिटी, ठीक है जी। इसी दे नाल लाइसेंस पीरियड का टेन्योर 10 तो लेके 20 साल कर दिता गया। प्रकाश जावेदकर एज ए एनवायरनमेंट मिनिस्टर इन्हां द्वारा रिलीज़ की गई लियोपार्ड पॉपूलेशन। इंडिया की जी लियोपार्ड की पॉपूलेशन है वो रिलीज़ की गई है
जिस दे विच एक फैक्ट सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा कि कितनी परसेंट तक इंक्रीज़ किया है, तो 60% इंक्रीज़ हुई है पॉपूलेशन। दूसरी किहड़ी स्टेट सब तो ज़्यादा लियोपार्ड पाए जाते हैं, तो MP दे विच सब तो ज़्यादा लियोपार्ड पाए जाते हैं। नैक्सट है मैनस क्रिकेट मैनस हॉकी टीम की रैंकिंग की गल करते हैं, चौथे नंबर पर है वर्ल्ड दे विच अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। टॉप किया गया बेल्जियम द्वारा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच हैडकुआटर है। इसी तरीके नाल वूमेंस टीम की रैंकिंग 9वें नंबर पर है और टॉप किया गया नीदरलैंड द्वारा। वर्ल्ड बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है जी 2018, 19 और 20 की रिव्यू की गई है। इंडिया की अगर आप गल करते हैं, इंडिया की प्लेसिस दे विच कोई चेंज नहीं आया है, फिर भी प्लेसिस इंपोर्टेंट बन गई। 2018 दे विच इंडिया 100वें नंबर पर सी, 19 दे विच 77वें नंबर पर सी और 2020 दे विच इंडिया। अगर चाइना की गल करते हैं तो चाइना की 2018 रैंकिंग दे विच चाइना 78 तो 85 नंबर पर आ गया, इंडिया 78 तो 85 नंबर पर आ गया। GDP की अगर आप गल करते हैं, NCAER द्वारा -7.3 फोरकास्ट की गई। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंस किया गया है कि हर एक व्हीकल दे फास्टैग इंपोर्टेंट हो जाएगा 1 जनवरी 2021 तो। ICC की रैंकिंग्स के अनुसार विराट कोहली का नंबर 7वें नंबर पर रहा T20 रैंकिंग्स के विच। नैक्सट है स्कीम्स के वाल चलते हैं, इंपोर्टेंट स्कीम्स ने। सब तो पहले गौतम गंभीर द्वारा जन रसोई स्कीम शुरू की गई। जन रसोई टू सर्व लंच एट ₹1 इन ईस्ट दिल्ली। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा द्वारा बेंगलुरु मिशन 2022 लॉन्च किया गया ताकि सिटी नू रीडेवलप किया जा सके अगले 2 सालों के विच। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा मास्क मैंडेटरी किया गया अगले 6 महीनों के लिए। यूपी गवर्नमेंट द्वारा विरासत कैंपेन इंपोर्टेंट रहेगा, विरासत कैंपेन लॉन्च किया गया यूपी द्वारा। नागालैंड गवर्नमेंट द्वारा फ्लैक्स बैनर्स नू प्रॉपर तरीके नाल बैन किया गया। जम्मू कश्मीर दे विच सेहत हैल्थ इंश्योरेंस एप्लीकेशन लॉन्च की गई। सेहत हैल्थ इंश्योरेंस एप्लीकेशन किन्ना द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। गुजरात गवर्नमेंट द्वारा दीन दयाल क्लीनिक ओपन किए गए हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा पोंगल फैसटिवल के लिए 2500 रुपये कैश और गिफ्ट हैंपर लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। नैक्सट है यूएसए द्वारा तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 लॉन्च किया गया है, जिसके अंडर तिब्बतन बुद्धिस्ट नू राइट प्रोवाइड किया गया अगला दलाई लामा बिना किसी इंटरफेरेंस तो चूज करने के लिए। ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट की जी अमाउंट है वो फिक्स की गई है ₹100। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 18,000 करोड़ यह जी न्यूज़ है, इस न्यूज़ के कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 18,000 करोड़ रुपए नैक्सट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ की गई 9 करोड़ बेनीफिशरीज के लिए अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस स्कीम नू कदों लॉन्च किया गया सी? 24 फरवरी 2019। इस तो इलावा गोरखपुर यूपी तो इसनू लॉन्च किया गया सी। किन्ना ने लॉन्च किया सी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही इसनू लॉन्च किया गया सी। अमाउंट तीसरी इंस्टॉलमेंट किस दिन रिलीज़ की गई? तो 25 दिसंबर को यह रिलीज़ की गई है। इंपोर्टेंट बनेगी क्योंकि इस दिन गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व किया गया सी। नैक्सट है डिफेंस रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले पिक्सल इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया की पहली ऑब्जरवेशन सैटेलाइट। पिक्सल इंडिया जी कंपनी है वह अपनी पहली अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगी। आनंद उसका नाम है, किसकी हैल्प के नाल? इसरो के PSLV C51 के नाल। इसी दे नाल इस दे विच स्पेस किड्स की एक सैटेलाइट और दूसरी यूनिटी सैट की एक सैटेलाइट नू लॉन्च किया जाएगा। नैक्सट है राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर इन्हों द्वारा एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी नू इनॉग्रेट किया गया APJ अब्दुल कलाम लैब DRDO हैदराबाद के विच। इंडिया ऐसा तीसरा नेशन बन चुका है USA और रशिया तो बाद जिस कोल इस तरीके की फैसिलिटी है।
DRDO द्वारा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ITR ओडिशा तो। इस दी स्ट्राइक रेंज 100 किलोमीटर है और इसनों इजराइल की हैल्प के नाल बनाया गया। इंडिया एक नेवी एक्सरसाइज पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट करन जा रही है वियतनाम के नाल साउथ चाइना सी दे विच। साउथ चाइना सी दे विच कैपिटल हनोई है, करेंसी डोंग चलती है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने इन्हां द्वारा हाईटैक सिस्टम्स नूं हैंडओवर किया गया है। पहला हाईटैक सिस्टम बोस हाईटैक सिस्टम बॉर्डर सर्विलेंस के लिए आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाणे नूं। दूसरा इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, यह नेवी चीफ एडमिरल करनबीर सिंह नूं। तीसरा अस्त्र MK1 मिसाइल सिस्टम, इसनूं एयरफोर्स के चीफ RK सिंह भदौरिया नूं हैंडओवर किया गया राजनाथ सिंह द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन नेवी द्वारा ही एग्रीमेंट साइन किया गया नैशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद के नाल टू शेयर ओशियन सर्विसेज डाटा। DRDO द्वारा एडवांस्ड टावर आर्टिलरी गन सिस्टम हॉविट्जर नूं टेस्ट फायर किया गया है ITR बालासोर ओडिशा तो। जिसकी स्ट्राइक रेंज 48 किलोमीटर है। इसनूं भारत फोर्ज पुणे और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हैदराबाद द्वारा डेवलप किया गया। पाकिस्तान के नाल एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है चाइना के नाल शाहीन 9 एक्सरसाइज पाकिस्तान और चाइना। नैक्सट है बैंकिंग न्यूज़। तो बैंकिंग न्यूज़ के बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा MOU साइन किया गया इंडियन आर्मी के नाल बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा मिलिटरी सैलरी पैकेज के लिए। ICICI बैंक द्वारा इन्फिनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया। इसके MD CEO द्वारा पल्लव मोहापात्रा द्वारा NPCI के नाल मिलके। फोन पे द्वारा वॉइस नोटिफिकेशन शुरू की गई है 9 वर्नेकुलर लैंग्वेजेस के बिजनेसिस के लिए। नेक्स्ट है एग्रीमेंट्स। इंपोर्टेंट एग्रीमेंट्स के वाल चलते हैं तो सब तो पहले ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 4.21 मिलियन का लोन एग्रीमेंट त्रिपुरा के लिए साइन किया गया। स्नैपडील द्वारा NPCI के नाल पार्टनरशिप की गई QR बेस्ड डिजिटल पेमेंट्स के लिए। ADB नाल एग्रीमेंट 231 मिलियन का असम के लिए, 4.21 मिलियन का त्रिपुरा के लिए, 231 मिलियन का असम के लिए। असम के लोअर कोपल्ली हाइड्रोलैक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। क्वेश्चन डायरैक्ट पूछा जा सकता है कि लोअर कोपल्ली हाइड्रोलैक्ट्रिक पावर प्लांट किहड़ी स्टेट के बनाया जा रहा है, तो असम के। इंडिया साइंड एग्रीमेंट 12 हाई स्पीड कोस्ट गार्ड शिप ने जिहड़े ये वियतनाम नूं दिते जा रहे हैं L&T द्वारा बनाए जाएंगे। असम ने सिडबी के नाल एग्रीमेंट साइन की MSME सैक्टर नूं बूस्ट करने के लिए। वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया टू बिल्ड सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स इन राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। $500 मिलियन एग्रीमेंट राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के ग्रीन हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए। गुजरात गवर्नमेंट द्वारा सैरेस्ट्रा मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया है स्पैशल एजुकेशन रीजन डोलरा गुजरात एक स्पैशल एजुकेशन रीजन बनाने के लिए। ADB द्वारा ही 295 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया गया नॉर्थन आर्क कैपिटल फॉर माइक्रो फाइनेंस एंड MSME सैक्टर। सेंट्रल कैबिनेट द्वारा 4 गवर्नमेंट फर्म्स सी जिहड़ियां फिल्म इंडस्ट्रीज दियां फॉर जिन्हां दा नाम फिल्म डिवीजन मुंबई, डायरैक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल दिल्ली, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया पुणे एंड चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी मुंबई। इन्हों मर्जर अनाउंस किया गया इन्हों नैशनल फिल्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन मुंबई के नाल NFDC के नाल इसका मर्जर अनाउंस किया गया।
इंडिया साइंस MOU, इंडिया ने राइस के लिए बांग्लादेश के नाल MOU साइन किया क्योंकि इस टाइम शॉर्टेज चल रही है राइस की बांग्लादेश के विच। नैक्सट है बुक्स, कुछ बुक्स डिस्कस कर लें। तो सब तो पहले ट्रॉली टाइम्स, इस वैसे एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़ लैटर शुरू किया गया, इसनों बुक्स दे विच इंक्लूड किया आपने। ये ट्रॉली टाइम्स है एक बाय वीकली न्यूज़ लैटर फार्मर्स द्वारा न्यू दिल्ली दे विच लॉन्च किया गया 2 लैंग्वेजेस हिंदी और पंजाबी दे विच। फर्स्ट एडिशन 19 दिसंबर 2020 ਨੂੰ लॉन्च किया गया। करीना कपूर खान द्वारा प्रेगनेंसी बाइबल नाम की बुक अनाउंस की गई है। माधव भंडारी ने जिहड़े इन्हां द्वारा अयोध्या नाम की बुक लिखी गई है और इसनों रिलीज़ किया गया महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस द्वारा। जयराम रमेश ने जिहड़े इन्हां द्वारा द लाइट ऑफ एशिया द बुक दैट डिफाइंड बुद्धा, इस बुक नूं लिखिया गया। अच्छा, जयराम रमेश बारे एक गल याद रखनी है, पर रिसेंटली भी जयराम रमेश का नाम डिस्कस किया सी। इन्हां दी एक बुक सी ब्रिलियंट चैकर्ड समथिंग इस तरीके की बुक सी, जिस दे लई इन्हां नूं रिसेंटली आप डिस्कस किया सी, अवार्ड दिता गया सी कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड। आई थिंक लास्ट वीक ही डिस्कस किया सी या उस तो पहले डिस्कस किया सी कि कमला देवी दिसंबर दे विच ही डिस्कस किया होया आपां ने कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड, वो भी जयराम रमेश नूं ही दिता गया सी। हालांकि इन्हां दे नाल एक होर ऑथर सीगे जिन्हां नूं यह अवार्ड दिता गया सी, पर जयराम रमेश का नाम याद रखांगे। इन्हां दी दूसरी बुक द लाइट ऑफ एशिया द बुक दैट डिफाइंड बुद्ध। कैलाश सत्यार्थी द्वारा कोविड-19 क्राइसिस एंड द सॉल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन, इस बुक नूं लिखिया गया है। इस बुक के रिलेटेड एक एडिशनल फैक्ट इंपोर्टेंट रहेगा, स्किप हो गया सी अपना, कि फॉर्मर चीफ जस्टिस इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह द्वारा इस बुक नूं रिलीज़ किया गया। ठीक है जी। नैक्सट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कमैमोरेटिव वॉल्यूम, इस बुक नूं पब्लिश किया गया सी लोक सभा सैकटरीएट द्वारा। नैक्सट है शक्ति सिन्हा द्वारा बुक लिखी गई प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा रिपोर्टिंग इंडिया बुक नूं लॉन्च किया गया, जिसनों लिखा गया सी ANI के चेयरमैन प्रेम प्रकाश द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई ओ मिजोरम रिटन बाय गवर्नर ऑफ मिजोरम PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा इस बुक नूं लिखा गया सी। नैक्सट है इंपोर्टेंट अवार्ड्स दे विच सब तो पहले डिस्कस करते हैं सोनू सूद और शरदा कपूर नूं हॉटेस्ट वेजिटेरियन नामित किया गया पैटा इंडिया द्वारा मेल और फीमेल कैटेगरी दे विच। IIT मद्रास द्वारा द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड है जिहड़ा, इस दे विच फर्स्ट प्राइज़ जीता गया श्रीनिवास करणम जो कि बेंगलुरु तो बिलोंग करते हैं। सी मोबाइल बनाने के लिए जो कि एक डीप सी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। और दूसरा सैकेंड प्राइज़ जीता सुब्रत कार जो कि न्यू दिल्ली तो बिलोंग करते हैं। इन्हां द्वारा सैकेंड प्राइज़ सेंसर नैटवर्क बनाने के लिए ताकि ट्रेन एनीमल कोलिजन नूं रोकिया जा सके। नैक्सट है अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर दे विच है, जम्मू एंड कश्मीर द्वारा इस अवार्ड नूं जितया गया है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हैरीटेज कंजरवेशन। रतन टाटा द्वारा 2 इंपोर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस इंडिया इजराइल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा दुबई दे विच। इसी दे नाल रतन टाटा नूं एसोचैम दा अवार्ड दिता गया, एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, ये भी रतन टाटा नूं दिता गया। इसकी बेसिकली एसोचैम फाउंडेशन वीक सीगा, तकरीबन 100 साल इसने पूरे किए हैं, तकरीबन नहीं कहांगे पूरी कहांगे 1920 तो 2020। एन हिरनदानी इसके चेयरमैन सीगे, इसके चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, उन्हों का नाम भी डिस्कस करते हैं। नैक्सट है OTT अवार्ड्स आप डिस्कस किए सी कि जो फर्स्ट एडिशन है OTT अवार्ड्स का, यह पहली बार दिते गए ने फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स। तो
पाताल लोक सीरीज़ है जी इसने बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड दिते है। इसके डायरैक्टर्स नूं बेस्ट डायरैक्टर का अवार्ड भी दिता गया, अविनाश अरुण और प्रोसित रॉय। इसी दे नाल बेस्ट सीरीज़ क्रिटिक्स कैटेगरी दे विच फैमिली मैन, बेस्ट एक्टर ड्रामा सीरीज़ दे विच तो जयदीप अलावत पाताल लोक, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स कैटेगरी दे विच मनोज बाजपाई, बेस्ट एक्ट्रैस ड्रामा सीरीज़ सुष्मिता सेन आर्या दे लई, बेस्ट एक्ट्रैस क्रिटिक्स प्रिया मनी फैमिली मैन दे लई, बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी सीरीज़ जितेंद्र कुमार पंचायत दे लई और बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ भी पंचायत नूं ही दिता गया यह अवार्ड। इसी दे नाल बेस्ट फिल्म है जिहड़ी रात अकेली है मूवी दे लई दिता गया। नैक्सट है इनोवेशन ऑफ प्लांट बेस्ड मॉक एग, एक प्लांट बेस्ड मॉक एग बनाया गया प्रोफैसर काव्या दशोरा द्वारा जो कि IIT दिल्ली तो बिलोंग करते हैं। इन्हों फर्स्ट प्राइज़ दिता गया इनोवेटिड फॉर SDG कॉन्टेस्ट दे विच, इनोवेटिड फॉर SDG कॉन्टेस्ट दे विच जिसनों UNDP एसलरेटर लैब इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया सी। UNDP का हैडकुआटर याद रखांगे न्यूयॉर्क के विच है। प्राइज़ मनी $5000 सी। प्रेजिडेंट ऑफ USA के प्रेजिडेंट इन्हों द्वारा द लीजन ऑफ मैरिट अवार्ड दिता गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। इंडिया वालों इस अवार्ड नूं किन्हां ने रिसीव किया है? इंडियन एंबेसडर टू USA तरनजीत सिंह संधू द्वारा। यह अवार्ड है 1942 के शुरू किया गया सी USA के प्रेजिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट द्वारा। नैक्सट है होकर कल्चर है सिंगापुर का, इसनों यूनैस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी दे विच ऐड किया गया। इंडियन म्यूजिशियन ने शंकर महादेवन इन्हां द्वारा UK आइकन अवार्ड 2020 जितया गया। NTPC की गल करते हैं, NTPC द्वारा एक्सलेंस अवार्ड दिता गया प्रेस्टीजियस CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 दे विच। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पोर्तुगल तो बिलोंग करते हैं, इन्हों फुटबॉल गोल्डन फुट अवार्ड 2020 के नाल नामित किया गया। इंडियन एक्टर धर्मेंद्र ने जोड़े इंडियन एक्टर इन्हों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया है न्यू जर्सी सैनेट USA दे विच। नेहा सिंह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो बिलोंग करते हैं, इन्हों द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया लार्जेस्ट पेंटिंग विद स्पाइस। सोकर वेटलैंड कंप्लेक्स चैंगथैंग रीजन लद्दाख का है। इसनों रामसर साइट्स के विच ऐड किया गया। यह इंडिया की 42वीं रामसर साइट बनी है और इस दे रिलेटेड एक फैक्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इत्थे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर डीप दे विच ज़्यादा पूछा जाता है तो इट इंक्लूड्स 2 कनैक्टेड लेक्स। इस दे विच 2 कनैक्टेड लेक्स ने, एक फ्रैश वाटर है एक सैलाइन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केड़ी फ्रैश वाटर है, तो स्टार स्पूक सो फ्रैश वाटर है और सलाइन केड़ी है सोकर सैलाइन है। इसी दे नाल रामसर कन्वेंशन याद रखांगे ईरान दे विच शुरू ऑर्गेनाइज किया गया सी 2 फरवरी 1971 दे विच और रामसर साइट नूं ऐड किया जाना 1975 दे विच शुरू किया गया सी। नैक्सट चलते हैं इंपोर्टेंट डेज दे वल। डेज दे विच सब तो पहले माइनॉरिटी राइट्स डे 18 दिसंबर, 20 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, 19 दिसंबर गोवा का लिबरेशन डे। गोवा पुर्तगाल तो लिबरेट होया सी 1961 दे विच, जिसनों ऑपरेशन विजय के अंडर किया गया सी और इसी दे नाल गोवा नूं फुल फ्लैज स्टेट है जिहड़ा ये 30 मई 1987 नूं डिकलेयर किया गया सी। विंटर सोलिस्टिस डे 21 दिसंबर। इसी दे नाल एक इंपोर्टेंट कह सकते इवेंट रहा कि 2020 दे विच जिहड़े 2 प्लैनेट सीगे जुपिटर और सैटर्न, इन्होंने एक सिंगल लाइन दे विच देखा गया। अर्थ दे नाल एक सिमेट्री दे विच देखा गया। फॉर एग्जाम्पल अर्थ है तो इत्थे जुपिटर और इत्थे सैटर्न एक सिंगल लाइन दे विच देखे गए। इट वाज लास्ट सीन ऑन 16 जुलाई 1623 और एस्टीमेट किया जा रहा है इसनूं दोबारा मार्च 15 2080 नूं देखा जा सकता है। नैक्सट है USA द्वारा जी US स्पेस फोर्स है इसके
एक साल पूरा होया फाउंडेशन का 18 दिसंबर ਨੂੰ इस दिन ਨੂੰ ऑब्जर्व किया गया और इन्होंने USA द्वारा इसनूं गार्डियंस कहा गया US स्पेस फोर्स ਨੂੰ गार्डियंस 22 दिसंबर ਨੂੰ नैशनल मैथमैटिक्स डे ऑब्जर्व किया गया इसनूं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया सी 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ एट मद्रास यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ to mark the 125th birth anniversary of Indian mathematician genius Srinivas Ramanujan 23 दिसंबर ਨੂੰ किसान दिवस या नैशनल फार्मर्स डे कह सकते हैं ऑब्जर्व किया गया to mark the birth anniversary of 5th Prime Minister of India चौधरी चरण सिंह 24 दिसंबर ਨੂੰ नैशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व किया गया 25 दिसंबर ਨੂੰ गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व किया गया एज 96th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी यह 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ 16 ਅਗਸਤ 2018 ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਨੇ ਤਾਂ SS ਦੇਸਵਾਲ ਨੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅਮਿਤ ਚੱਡਾ MD and CEO ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ L&T ਕੰਪਨੀ ਦੇ MD CEO ਅਮਿਤ ਚੱਡਾ गौरव आहलूवालिया इंडिया के नैक्सट एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं अल्जेरिया के लिए इंडियन एंबेसडर टू अल्जेरिया मोबीक्विक सिद्धार्थ दमीजा जाकपे अपॉइंट मोबीक्विक द्वारा जाकपे दे CEO अपॉइंट किए गए सिद्धार्थ दमीजा USA प्रेसिडेंट इलैक्ट जो बिडन द्वारा वेदांत पटेल का नाम असिस्टेंट प्रेस सैक्रटरी के लिए सिलैक्ट किया गया इंडियन अमेरिकन ने इंपोर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बनाई गई एक हाई लैवल कमेटी जो कि 125वीं बर्थ एनिवर्सरी ਨੂੰ कमैमोरेट करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी आ रही है 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 23 जनवरी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਮੰਤ ਸਿਨਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ इसी दे नाल विनीत अग्रवाल चेयरमैन अपॉइंट किए गए ने एसोचैम के 1920 के विच बनाई गई सी न्यू दिल्ली के विच हैडकुआटर USA प्रेसिडेंट इलैक्ट जो बिडन द्वारा इंडियन अमेरिकन भारत रामामूर्ति का नाम इलैक्ट किया गया नैशनल इकनॉमिक काउंसिल के मैंबर के तौर पर नैक्सट है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक होर कमेटी बनाई गई किस दे लई फ्रेमवर्क बनाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करने के लिए लॉजिस्टिक पार्क बनाने ने क्योंकि इंडिया के लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं किन्ना दी चेयरमैनशिप के अंडर रोड ट्रांसपोर्ट सैक्रटरी गिरीधर अरमाने इस कमेटी के चेयरमैन ने RBI द्वारा संदीप बत्रा का नाम इलैक्ट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर बनाने के लिए ICICI बैंक के 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे पूजा देवी इंडिया के इंडिया के नहीं कहांगे जम्मू कश्मीर के पूजा देवी जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट वूमेन बस ड्राइवर बने ने ओबीचरीज के एक इंपोर्टेंट नाम रहेगा एक ओबीचरी डिस्कस की सी आपां ने इस वीक के मोतीलाल वोहरा एक कांग्रेस लीडर सीगे इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है यह 2 बार मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं इस तो इलावा यूपी के गवर्नर रह चुके हैं और हैल्थ एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के इस टाइम हैल्थ मिनिस्टर कौन ने डॉक्टर हर्षवर्धन इस टाइम सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन ने हरदीप सिंह पुरी इन्होंने रिलेटेड एक इंपोर्टेंट न्यूज़ है कल के सैशन में भी डिस्कस करांगे इस तो इलावा MP की गल करते हैं MP के चीफ मिनिस्टर इस टाइम कौन ने और
गवर्नर यूपी के कौन ने? ये दोनों नाम कमेंट बॉक्स में भी दसने ने। नैक्सट है स्पोर्ट्स न्यूज़ दे विच कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स रिड्यूस्ड बैन ऑन रशिया। इन्हों द्वारा रशिया के उत्ते जिहड़ा बैन सीगा 4 साल का इसनूं रिड्यूस किया गया 2 सालों के लिए। ठीक है जी, रशिया नूं 2019 दे विच बैन किया गया सी वाडा द्वारा। रशिया टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स और फीफा वर्ल्ड कप दे विच पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। नैक्सट है इंडिया 2027 का एशियन कप फुटबॉल एशियन कप होस्ट करेगा 2027 दे विच। चाइना 2023 दे विच इसनूं होस्ट करेगा। इसनूं शुरू किया गया सी हांगकांग दे विच, पहली बार हांगकांग दे विच 1956 दे विच ऑर्गेनाइज किया गया और इंडिया इसनूं 2011 दे विच भी होस्ट कर चुके। नैक्सट है अंशु मलिक जो कि एक रैसलर ने, इन्हों द्वारा सिल्वर मैडल जितया गया इंडिविजुअल वर्ल्ड कप बेलग्रेड सर्बिया दे विच। लियोनल मैसी अर्जेंटीना तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने बार्सिलोना क्लब तो खेलते हैं और इन्हों द्वारा 643 गोल्स बनाए गए ने। पेले रिकॉर्ड ब्रेक करे जो कि ब्राजील तो बिलोंग करते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा ही मॉरिशस बैडमिंटन प्लेयर केट जैसिका फूकून नूं 2 सालों के लिए बैन किया गया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू द्वारा 4 इंडिजीनियस गेम्स, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगी, वेरी 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 इंपोर्टेंट, क्योंकि 4th एडिशन ऑर्गेनाइज किया जाने 2021 दे विच। कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? हरियाणा के पंचकुला दे विच। उत्थे 4 इंपोर्टेंट गेम्स नूं ऐड किया गया 4th एडिशन के लिए। एक तो गतका हो गया, पंजाब तो बिलोंग करती है। कलारी पयातू केरला तो बिलोंग करती है। थैंगटा मणिपुर तो बिलोंग करती है और मलखम MP और महाराष्ट्र तो बिलोंग करती है। इस तो अलावा योग आसन याद रखेंगे, योग आसन भी अनाउंस किया गया कि इसनूं भी परफॉर्म किया जाएगा इस दे विच। नैक्सट है इंडिया हैज़ वॉन 9 मैडल्स इंक्लूडिंग 3 गोल्ड मैडल्स, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज एट कोलोगने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप कोलन जर्मनी दे विच। जर्मनी के कोलन दे विच कोलोगने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया द्वारा। टोटल 9 मैडल्स, 3 गोल्ड सीगे तो 3 गोल्ड किन्ना द्वारा जीते गए, नाम इंपोर्टेंट बन गए। अमित पंगल, मनीष मौन और सिमरनजीत कौर। अमित पंगल, मनीष मौन और सिमरनजीत कौर। एक मेल मेडल और 2 फीमेल्स द्वारा ये मेडल जीते गए। अहमद बिन अली स्टेडियम है अल रयान कतर दे विच। ये चौथा फुली ऑपरेशनल स्टेडियम बन चुके हैं जो किस दे लई? फीफा वर्ल्ड कप 2022 दे लई। कतर दे विच आपां डिस्कस किया कि फीफा का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इस दे लई फुली ऑपरेशनल बन चुके हैं अहमद बिन अली स्टेडियम। और ये ज़्यादा इंपोर्टेंट इस करके रहेगा अपने लिए क्योंकि इंडिया की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T लॉर्सन एंड टर्बो द्वारा इसनूं कतर की कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाल मिलके बनाया गया। ठीक है जी, फीफा रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज़ है, कल के सैशन में भी डिस्कस करांगे। नैक्सट है फॉर्मूला 1 कार रेसर ने ब्रिटेन तो बिलोंग करते हैं लुइस हैमिल्टन। इन्हों BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया। BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया। जेफना स्टैलियंस द्वारा लंका प्रीमियर लीग LPL लंका प्रीमियर लीग का फर्स्ट एडिशन जितया गया गेल ग्लैडिएटर्स हरा के। BCCI जनरल बॉडी द्वारा डिसाइड किया गया कि 10 टीम्स पार्टिसिपेट करनगियां IPL 2022 एडिशन दे विच। IPL दे विच 8 टीम्स पार्टिसिपेट करदियां ने, पर BCCI द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि जो 2022 दे विच IPL होएगा उस दे विच 10 टीम्स पार्टिसिपेट करनगियां। BCCI का हैडकुआटर मुंबई दे विच है और सौरभ गांगुली इस दे हैड ने। आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।